راست بازی، جب آپ کے اندر حقیقی راست بازی ہوگی تو آپ ایک اپنا ٹارگٹ بنائیں گے۔ یہاں خدا کے کلام میں سے آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، پولس رسول کا خط فلپیوں کے نام، اور لکھتا ہے غرض میرے بھائیوں خداوند میں خوش رہو۔ آج ہم خداوند میں خوش ہی نہیں ہیں۔ آج ہمارے چہروں سے، آج ہماری زندگیوں سے، آج ہمارے گھرانوں سے کوئی خوشی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اگر آپ خداوند میں خوش رہتے ہیں، اگر آپ خداوند کے اندر جو ہے خوشی مناتے ہیں اور ہر ایک چیز کو خدا کے ساتھ لے کر چلتے ہیں، تو پھر خدا آپ کی ہر ایک چیز کے اندر آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ لکھا ہے غرض میرے بھائیوں خداوند میں کیا رہو، خوش رہو۔ تمہیں ایک ہی بات بار بار لکھنے میں مجھے تو کچھ وقت نہیں، مجھے کچھ دقت نہیں، اور تمہاری اس میں حفاظت ہے۔ اصل میں بتانا یہ چاہتا ہوں، پولس نے ایک ہی بار ایک ہی بات کو بار بار بولتا تھا، بار بار لیٹرز میں لکھتا تھا۔ اور ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں بھی آپ کو بار بار کسی بات سے منع کیا جا رہا ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کے اندر آپ کو بار بار کوئی بات آ کر ٹک 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 کر رہی ہو، آپ کے دروازے پہ کوئی بار بار چیز آ کے کھٹ کھٹا رہی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو بھی سکتا ہے، آپ کی لائف میں کچھ ایسا چل بھی سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے مجھے کوئی اس بات کی دقت نہیں کہ میں بار بار تمہیں ایک ہی بات لکھوں۔ کہتا ہے لیکن اس بات کو میں بار بار اس لیے تمہیں کہتا ہوں، سمجھنا اس پیسج کو سمجھنے کے لیے، کہتا ہے میں بار بار تمہیں اس لیے یہ بات کہتا ہوں تاکہ تمہاری حفاظت ہو۔ ارے سب چاہتے ہیں، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ بات کہے کہ میری حفاظت نہ ہو، میرے بچوں کی حفاظت نہ ہو، میری نسل کی حفاظت نہ ہو۔ ہر ایک شخص کی یہی کوشش ہے کہ میرے گھرانے کی، میرے بچوں کی، میرے مال کی، میرے ہر ایک چیز کی حفاظت ہوتی رہے۔ لیکن سنیں، اگر حفاظت چاہتے ہیں تو پھر جو بار بار بات آپ کی زندگی میں آ رہی ہے نا، خدا کی طرف سے اسے کلک کر دیں۔ ہاللیلویا! یقین جانے آج ہم ترسے ہوئے لوگوں کی طرح کہتے ہیں خدا دے دے، خدا دے دے، خدا نہیں دے ہوتا ہے۔ خدا آپ کے لیے چیزوں کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ارے جس لیے آپ اس زمین پر فکر مندی کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، ان چیزوں کو ایسے حاصل آپ نہیں کر سکتے۔ آپ ساری زندگی گزار دیں گے، آپ کی عمر گزر جائے گی، لیکن وہ چیزیں ارے لینا تو دور کی بات، آپ کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگی۔ لیکن سنیں آج رات آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں، بلکہ آپ کی زندگیوں پر پروفیسائی کرنا چاہتا ہوں، اپنا ہاتھ اٹھائیں کہ آج اگر آپ خدا کی حضوری کے اندر اس بات کا اقرار کرتے ہیں تو جو چیزیں آپ خدا سے لینا چاہتے ہیں، خدا کی پریزنس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کی وفاداری، آپ کی تابعداری، آپ کی ایمانداری خدا کو پسند آئے تو خدا انہیں دیکھنا نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں جاری کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا! کیونکہ وہ چیزیں آپ نے صرف سوچی ہیں۔ آج لوگ ترس رہے ہیں خدا دے دے۔ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال گزر گئے، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ 20 سال گزر گئے، کچھ حاصل نہیں ہے۔ کب ہوگا خداوند؟ کب ہوگا خداوند؟ کب ہوگا؟ انتظار، انتظار اور انتظار صرف۔ اور سنیں، انسان انتظار کرتے ہوئے نا بہت زیادہ جو ہے نا خوف کھاتا ہے۔ ایسے ہی بدکاروں سے خبردار رہو۔ کس سے خبردار رہو؟ بدکاروں سے بھی خبردار رہنا۔ ایسا شخص جو بدکاری کو لے کر آتا ہے اس سے بھی خبردار۔ پھر لکھا ہے کٹووں سے خبردار رہو۔ کس سے خبردار رہو؟ کوئی آپ کی کاٹ بھی کرنے والے ہوتے ہیں، آپ کی زندگی میں آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ کتوں سے، حرام کاروں سے، پھر وہ کہتا ہے کہ کٹوانے والوں سے بھی کیا رہو؟ خبردار ہو، کیونکہ مختون تو ہم ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں اور مسیح یسوع پر فخر کرتے ہیں۔ خدا کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں جب اپنا وقت خدا کو دے سکتے ہیں، اپنی چیزیں خدا کو دینے کی آپ جو ہے وہ حیثیت رکھتے ہیں، تو پھر آپ کا خدا بھی آپ کو سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا۔ آپ میں کتنے یہاں بیٹھے، میرا ایک سوال ہے آپ سے،
जिन्होंने जो कुछ मांगा खुदा ने उनको सब कुछ दे दिया। कोई हाथ उठा सकता है कि मखतून तो हम हैं जो खुदा के रूह के हदायत से इबादत करते। खुदा की रूह से इबादत करना है, खुदा की रूह से भरकर इबादत करें। मायूस होकर इबादत करने वाला शख्स खुदा को पसंद मायूस, दुख की हालत में। ठीक है दुख है, लेकिन जब प्रेजेंस में हो तो सब चीजें पीछे रखें। शुरू में वो एक बात कहता है, कट्स मेरे भाइयों खुदावंद में क्या रहो, खुश रहो, खुश हो जाओ। प्रेजेंस में आके खुशी के साथ खुदा की इबादत करो, ताकि खुदा आपके उन खिलते हुए चेहरों को देखकर आपको बरकत। और जिस्म का भरोसा नहीं करते। किसका भरोसा नहीं करते? आज हम जिस्म की ताकत पर भरोसा किए बैठे हैं। हम समझते हैं हम अपने इन हाथों से सब कुछ कर सकते हैं, हम अपने जोर से सब कुछ कर सकते हैं। अरे जो जोर से, जो ताकत से नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के रूह से हो सकता है, क्योंकि उसका रूह सब कुछ करने की कुदरत रखता। हालेलुया। अपने कानों को कौन सी आदत डालो? हम चाहते हैं हम जहां जाएं सवाली बनकर, जिस स्तर पर हम जाकर खड़े हो जाए वहां से हमें नो ना हो, बस यस हो। अरे सुने, नो की जब आपको आदत पड़ जाएगी ना सुनने की, तो यस ऑटोमेटिक आपकी जिंदगी के अंदर आना शुरू हो जाएगा। यस जब होगा जब आपकी जिंदगी के अंदर क्वालिटीज होंगी। यस आपकी जिंदगी में तब होगा जब आप उस चीज के लिए एग्जैक्ट हुनरमंद होंगे, तब वो चीजें आपकी जिंदगी में डेवलप होना शुरू हो जाएगी। आपको आदत ही नहीं है, आप कहते हैं नो नहीं सुनना, यस सुनना है। लेकिन कभी कभी आपको नो सुनना पड़ता है, और नो सुनने वाला शख्स जो है वो जल्दी अपनी जिंदगी में यस खुदा से करवा सकता। खुदा एक बार नो बोलेगा, 2 बार नो बोलेगा, लेकिन आपकी मेहनत, आपकी उस सारी चीजों को देखते हुए, शक्कत को देखते हुए खुदा एक दिन कहेगा यस, अब तू इस पॉइंट पर आया है तो तेरे लिए हो सकता है। हालेलुया। नहीं करते गो मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूं, अगर किसी और को जिस्म पर भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज्यादा कर सकता हूं। इतनी फख्र की बात, पता है मैं तो जिस्म पर भी भरोसा कर सकता हूं। क्यों पौलुस ये बात उनको कहता है? क्योंकि उसके अंदर दुआ थी। हालेलुया। उसके अंदर रोजा था। हालेलुया। उसके अंदर खुदा की रियासत थी, उसके अंदर खुदा की बंदगी थी, उसके अंदर खुदा का नाम था। अरे वो जिस जगह खड़ा होता था, जिसका नाम लेता था, वो जिसके नाम से बोलता था, वो सब कुछ इस जमीन पर होना शुरू हो जाता था। इसलिए क्योंकि उसको पता था, वो कहता है मैं इस जिस्म पर इसलिए भरोसा करता हूं कि मैंने इस जिस्म से गलत काम नहीं बल्कि खुदा का जलाल जाहिर किया है। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है तुम्हारे बदन खुदा का मकदस। हम क्या करते थे? कहता है ये गरज नहीं करता। कभी कभी हम कुछ चीजों को पा लेते हैं, हम कहते हैं देखा मैंने कर लिया, ओ मैंने कर दिया है, ओ मेरे लिए हो गया है। सुने, वो कहता है ये कोई बड़ी बात, अगर खुदा ने आप पर ये मेहरबानी कर ही दी है, अगर उसकी नजर तुझ पर पड़ ही गई है, तो ये मत सोच कि खुदा ने तेरे लिए इसलिए किया है। आगे चल के देखें, वो कहता है ये कर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूं, बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं। कहता हो चुका है, लेकिन प्रॉपर मैंने इसको भी पकड़ा, मैंने भी इसको हाथ, कहता मैंने भी इसको हाथ नहीं लगाया, लेकिन फिर भी उस चीज के लिए मैं क्या करता हुआ जाता हूं, दौड़ा हुआ जाता हूं। और आज हम में से बहुत से ऐसे हैं जो दौड़ रहे हैं अपनी उस ख्वाहिश के पीछे, अपने उस कामों के पीछे, अपनी उन चीजों के पीछे जिसका खुदा आपको मना कर रहा है। हालेलुया। कई बार हमने दुआएं की हैं, आपको तो उसका जवाब मिल भी गया है, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आ रही। कह रहा है मैं उस चीज को पकड़ने के लिए भागता चला जाता हूं, दौड़ा हुआ जाता हूं, ताकि मैं उस चीज को पकड़ सकूं, ताकि मैं उसके लायक बन सकूं। लेकिन मेरी ये जुस्तजू यही है कि जब मसीह जो कि मेरा रखवाला, मेरा बनाने वाला, मेरा तवक्कल जिस पर है, मैं जब उसके लिए दौड़ा जाता हूं, तो फिर मेरा जो मसीह है उसने मुझे ये बताया है कि मुझे जाकर उसको क्या करना है, पकड़ लेना। अब आप पर ये
बात पता नहीं कैसे उतरती है कि जब आप चीजों को पकड़ लेते हैं तब जाकर वो चीजें आपकी जिंदगी में आ जाती है। फिर कहता है, ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ हूं। इसी बात को पौलुस लेकर कहता है कि वो चीजें कहां रह गई, तुम्हारे पीछे रह गई, और अब तुम रुक भी नहीं सकते कि खड़े होकर देखो कि है कि नहीं है। अब आपको चलना है। आपको क्या करना है? क्योंकि वो शहर तबाह होने वाला था, उस शहर के अंदर खुदा का गजब पड़ने वाला था, उस शहर को खुदा बर्बाद करना चाह रहा था। किसकी बात कर रहा हूं? सदूम और अमूरा की। खुदा उस शहर को क्या करना चाह रहा था? खत्म करना चाह रहा है, बर्बाद करना चाह रहा है खुदा। और खुदा ने इंस्ट्रक्शन ये दी है कि जो चीजें पीछे रह गई हैं तुमने उन्हें मुड़कर नहीं देखना, उनकी परवाह नहीं करना। अरे मैं तुम्हारा गयूर खुदा, मैं तुम्हारा जबरदस्त खुदा, मैं तुम्हें हर एक चीज देने वाला। वो चीजें जो रह गई हैं, वो चीजें जो तुझसे छूट गई हैं, वो तेरी जिंदगी से जो पीछे रह गई हैं, अरे सुन, जब तू उसको बिना देखे आगे बढ़ता जाएगा तो आगे चलकर उससे अच्छी, जबरदस्त, उम्दा चीजें तेरे लिए मैं दूंगा, ताकि तुझे उन चीजों की कभी कमी महसूस ना हो। लेकिन सुने, लूत की बीवी ने क्या किया कि वो अपने पीछे सामान को देखती रही। हाय मेरे कांटे रह गए, ओए मेरी अंगूठी रह गई, ओए मेरा ये रह गया, और वो पीछे देखती रही। और जैसे ही उसने पीछे देखा, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब उसने इंस्ट्रक्शन को अपनी जिंदगी से हटा दिया तो लिखा वो नमक का स्पून। ओह माय गॉड, आज हमारी जिंदगियों में भी ऐसे कई सतून बने हुए हैं, हमें पता ही नहीं है। हम कहते हैं नहीं जी मैं तो ठीक चल रहा हूं। कभी कोई कुछ कह दे, समझा दे, तो आप कहते नहीं 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 नहीं, आई एम वेरी स्पिरिचुअल, मैं बहुत रूहानी। कभी कभी हम बहुत ज्यादा अपने आप में महारत लिए बैठे होते हैं, बहुत अपने आप में होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन सुने, खुदा को तकब्बुर पसंद। ये जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हो सकता है ये गलत कह रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये हमें यहां से निकाल कर हमारा माल हजम करना चाहते हैं। वो इस गुमान में थी, उसे ये था कि ये शायद सब कुछ मेरा लूट लेंगे, ये सब कुछ मेरा ले लेंगे। और लिखा है जैसे ही उसने पीछे देखा, बताना क्या चाहता हूं, हुक्म अगर आप तोड़ेंगे तो आपकी जिंदगी में कभी बरकत नहीं आ सकती। खुदा आपका जो है वो ऐसा खुदा है जो कोई गलती, कोई खता, कोई कमजोरी आपके अंदर देखना नहीं चाहता। जब उसने कहा है नहीं करना, तो जब करना है तो दैट्स इट। इसीलिए यीशु ने कहा था हाँ की जगह हाँ बोलना, और ना की जगह हम ना की जगह हाँ करते हैं, और हाँ की जगह हम उल्टे हैं। हमारे रूल अलग हैं। अरे भाई, हम और तरीके से चलना चाहते हैं, हमारा तरीका ही कुछ डिफरेंट है। हम उन चीजों पर आना ही नहीं चाहते। हम हाँ की जगह हाँ नहीं, हम कहते हैं ना, और ना की जगह क्या करते हैं। लेकिन सुने, वो भी पीछे देख रही थी, उसने कहा सब कुछ मेरा हो रहा, मैं जाती हूँ और लेकर आ जाती हूँ। खुदा ने इस काबिल ही नहीं छोड़ा उसे। आज जिंदगियां नमक की सतून की तरह स्टक होके पड़ी हुई, अब उनमें कोई हरकत नहीं है। सुने, अब उनमें कोई, अब वो हिल नहीं सकती। अब जब उसे मौका मिला, उसने वो क्या कर दिया, साया कर दिया है। अब वो एक कदम भी नहीं उठा सकती। अब वो वहीं की वहीं एक स्टैच्यू बन गई। खुदा ने उसको वहां पर नमक का सतून बना। पीछे देखा, मेरी नजर पीछे गई तो मेरा खुदा मेरी जिंदगी से चला जाएगा, मेरे कामों से चला जाएगा, मेरी चीजों से खुदा की रौनक चली जाएगी। अरे कहता है मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरी औलाद खुदा के हाथों से निकल जाएगी। वो दुआएं जो मैंने खुदा के हुजूर की थी, खुदावन मेरी औलाद को बरकत दे, मेरी चीजों को बरकत दे, मेरे घराने को बरकत दे। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा, सारी चीजें खत्म। सुने, हस्बैंड और वाइफ अपने घर के दो सतून होते हैं। क्या होते हैं? लूत की बीवी और लूत और उसकी बीवी, वो दो सतून थे। लेकिन मजबूरन
एक वहीं स्टक हो गया। सुने, हो सकता है आपकी फैमिली में भी ये प्रॉब्लम हो। आप दुआ करने वाली हो, आपका शौहर दुआ ना करता हो, आपका शौहर दुआ करने वाला हो और आप दुआ करने वाली ना हो। फिर कहता है निशान की तरफ दौड़ा जाता हूं। जिस निशान की बात करते हैं ना, आज हमने भी अपनी जिंदगी के अंदर निशान बनाए हैं। सुने, माफी चाहता हूं लेकिन बोलूंगा जरूर, हमने अपनी जिंदगी की तरफ अपनी जिंदगी के निशान बनाए। हम उन पॉइंट्स पे जाकर दुआएं करते हैं, हम उन चीजों के लिए जाकर दुआएं करते हैं जिनकी हमें जरूरत है। इसके अलावा हम दुआ करना ही, इसके अलावा हम वर्शिप करना ही, इसके अलावा हम खुदा की प्रेजेंस में आना ही। लेकिन वो कहता है मैं निशान की तरफ दौड़ा जाता हूं क्योंकि ये निशान मुझे मेरे खुदा ने दिया है। सुन, खुदा ने तुझे जहां बरकत दी है, जहां से तेरे लिए खुदा ने सोर्स रखी है, तुझे वहां दौड़ना है। तेरा निशान जहां पर है, तेरी निगाहें जहां पर है, वो जगह कोई और नहीं बल्कि तुझे तेरे खुदा ने दी है। लेकिन सुन ए इंसान, तू जिस तरफ दौड़ना चाहता है, तू जिन चीजों में बढ़ना चाहता है, तू जिन कामों को करना चाहता है, अरे वो तेरे लिए बरकत, तेरे लिए रौनक नहीं हो सकती, बल्कि वो तेरे लिए शर्मिंदगी का बायस हो सकती है। मुझे खुदा के लोग क्या करते हैं, खुदा उन्हें एक पॉइंट दे देता है और उस पॉइंट की तरफ वो चलते रहते हैं, इधर नहीं देखते, इधर नहीं। और सुने, जो शख्स इधर देखता है वो आगे गिर सकता है, उसको ठोकर लग सकती है। कहता है मैं निशान की तरफ क्या करता जाता हूँ, क्योंकि जब आपकी निगाहें दुरुस्त जगह पर होंगी ना, आप कभी भटकेंगे नहीं। आज कितने यहाँ बैठे जो हाथ उठा सकते हैं उस मसीह में आने के बाद खुदा ने आपको गिफ्ट्स दिए हो, इनाम दिए हो? कोई है जो हाथ उठा सकता है? फिर उस इनाम को लेकर और फिर कहता है खुदा ने मुझे मसीह में ऊपर बुलाया है। ओ माय गॉड, ये सबसे बड़ी बात है। आज की सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं और वो ये है कि इन सारी चीजों को करने के बाद आपके लिए एक गिफ्ट होगा और वो गिफ्ट खुदा देगा और वो ऐसा गिफ्ट होगा और उसके बाद खुदा आपको नीचे नहीं रहने देगा, खुदा आपकी उन चीजों को वहां पड़ा नहीं रहने देगा। खुदा तुझे भी उठा लेगा और तेरी चीजों को भी उठाएगा और फिर तुझे ऊपर लेकर आएगा। हालेलुया। और जब आप ऊपर आएंगे तो फिर ऊपर से खुदा बरकत, ऊपर से खुदा कुदरत, ऊपर से खुदा हर एक हशमत, हर एक नेमत, हर एक चीज जो खुदा आपको देना चाहता है, जो आपकी जिंदगी में खुदा रखना चाहता है, वो आपको देगा। और ना सिर्फ देगा, लिखा है तेरे में सिर्फ बरकत नहीं होगी बल्कि तू भाई से बरकत होगा। और भाई से बरकत ये होगा कि तेरी जिंदगी के अंदर से बरकतें यूटिलाइज होंगी। तू जिस पर हाथ रखेगा, तू जिसके लिए बोलेगा, तू जिसके लिए डिक्लेयर करेगा, लिखा है उसके लिए होता चला जाएगा, उसके लिए होता चला जाएगा। और खुदा आपके ऊपर जब बुलाएगा तो फिर तेरी जिंदगी से ऐसी चीजें रूनुमा होना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। हम किधर की तरफ भाग रहे हैं? कहता है हकीकी रास्तबाजी। नंबर 1, आपको उस रास्तबाजी के अंदर आने की जरूरत है। और अगली बात वो कहता है निशान की तरफ दौड़ते रहना, वो निशान जो खुदा ने आपको दिया। अगर खुदा ने आपको अपने जलाल के लिए चुन ही लिया है, अरे खुदा के लोगों, तो फिर छोड़ें सारी चीजें, उस तरफ चलते चले जाएं। खुदा आपको एक दिन उस सारी चीजों में उठा खड़ा करेगा, ऊपर लेकर जाएगा और वहां तुम्हारे लिए सब कुछ होगा। खुदा आपको बरकत दे। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे।